On 6th of May 2026, a report was received in police station Katwa through reliable sources stating that two brothers, namely Nakul Singh and Nikhil Singh, each of the age of 18 years and 16 years respectively, sons of late Balbir Singh and resident of ward number 10 Katwa, had allegedly been attacked with an intention to kill and were lying in a pool of blood at a residence in critical condition. Upon receipt of the information, FIR number 230/2026 was registered at police station Katwa under section 103, 109, 333, 115 subclause 2 of BNS, and investigation was started. A police team comprising of SHO Katwa and DSP headquarters immediately reached the spot. Both injured brothers were shifted to GMC Katwa initially for treatment, where doctors declared Nakul Singh as brought dead, while Nikhil Singh was referred to AIMS Vijaypur for advanced treatment. The body of Nakul Singh was shifted for post-mortem examination. On reaching the spot, the crime scene was secured and legal formalities were initiated. During inspection of the scene of crime, it was found that the iPhone belonging to deceased Nakul Singh was missing. FSL was called and relevant material evidence was seized and e-Sakshi proceedings were conducted as per law. During further course of investigation, several suspects were rounded up and questioned in detail. The ESU team of District Police Katwa did the CDR and technical analysis, which gave us an initial lead. Thereafter, during the sustained interrogation, suspect Parth Verma, alias Sumit, son of Somraj, resident of ward number 9 Katwa, admitted his involvement in the commission of crime. The missing iPhone of deceased Nakul Singh was also recovered on his disclosure in front of a magistrate, and FSL team was again called, which proceeded further as far as the forensics is concerned. During interrogation, accused Parth Verma disclosed that on 6th of May 2026 at around 10:40 am, he visited the house of Nakul Singh and made a phone call to Mohit, alias Bobby, from Nakul Singh's phone at about 11:35 am, and at approximately 12:40 pm, an argument and physical scuffle reportedly broke out between Nakul Singh and Parth Verma over love interest involving a girl, which soon turned into a verbal and heated exchange and altercation, in which Parth Verma allegedly picked up a cricket bat lying in the room and struck Nakul Singh on the head, causing him to collapse. Meanwhile, Nikhil Singh, younger brother of Nakul Singh, returned home and entered the house. Fearing that he would be caught, the accused allegedly attacked Nikhil Singh multiple times on the head with the same cricket bat, causing him to fall unconscious. After committing the crime, the accused allegedly left the cricket bat at the scene, took away Nakul Singh's phone and fled away from the spot. This cricket bat was later on seized when our team reached the crime scene. At around 5 pm, the victim's mother, Jyoti Devi, returned home from office and discovered her sons lying in a pool of blood. Upon her cries for help, neighbors gathered at the scene and informed the police, after which the entire investigation in the case got initiated. Thank you. मैडम बताएं कि पार्थ वर्मा कहां से पकड़ा गया, क्या कठुआ से ही पकड़ा गया जब फरार हो चुका था? और इसमें मर्डर का एंगल क्या है, क्यों इसमें क्या इशू क्या रहा है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इट इज ओवर अ लव इंटरेस्ट ओवर अ गर्ल. जो अक्यूज था क्या उसकी फैमिली से रिलेशन था इसका, जान के वो था ये आपस में दोस्त थे. जी. पार्थ वर्मा जो है, जो बताया जिसने ये पूरा गुनाह किया, क्या वो कठुआ से ही पकड़ा गया या फिर मौके पर? कठुआ से ही पकड़ा गया. पार्थ वर्मा जो है, जब ये उसने अटैक किया उसके बाद ये कहाँ भागा है? ये अपने ही इधर उधर में था, बट हमारे पास क्योंकि उसके फोन नंबर्स थे और हम उसकी सीडीआर और लोकेशन ले रहे थे, तो वो कठुआ में था. उसने कठुआ जिला नहीं छोड़ा.
मैं जब इनका स्कफल हो रहा था, क्या इन्होंने किसी भी तरीके का कोई ड्रग्स वगैरह कुछ लिया था, उसका कोई सेवन ये कुछ करते थे? देखिए, अभी ये चीज के बारे में मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी तो तभी हम बताएंगे। मैम, पार्थ वर्मा की उम्र, क्या कुछ पहले भी कोई ऐसी हिस्ट्री है या फिर ये फर्स्ट टाइम ही कुछ इस क्राइम में? ये जो है ये जनरली कुछ छोटी मोटी स्नैचिंग या चोरी के अंदर ये इनका पूरा ग्रुप एक छोटी मोटी चोरियों में कभी इनका नाम आता था। they were sometimes rounded up by the police as well, but पार्थ वर्मा जो है वो 19 साल का लड़का है जो कि ये छोटी मोटी चोरियां करता था। एक ही ग्रुप था इन तमाम जितने, मतलब जो आपस में। ओके। इससे पहले भी इनके घर पे आता था ये पार्थ वर्मा? हाँ, पार्थ वर्मा दोस्त है तो कभी कभार आता था इनके घर पे। जैसे इसकी मदर की स्टेटमेंट है कि इसके ऊपर पहले भी अटैक हुआ, जैसे लव एंगल्स है, तो क्या इसके साथ वो सारा अटैचमेंट है? देखिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लव इंटरेस्ट के बारे में तो अब सामने आ ही गया जब उसने खुद कहा है कि एक लड़की जो है वो उसको भी वो भी पसंद करता था, मैं भी पसंद करता था, तो उसके पीछे इनकी लड़ाई हुई है आपस में। मैम, जो पार्थ वर्मा और जो मोहित है, जो क्रिमिनल्स है, उनकी एज कितनी है? पार्थ वर्मा इज 19 years old। मोहित वर्मा को आप क्रिमिनल मत बोलिए, बिकॉज उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसको सिर्फ नकुल के फोन से पार्थ ने कॉल किया था। और किस तरह से देखते हैं कि मतलब 19 साल की उम्र में जो है इस तरह के जो है क्राइम कर रहे हैं, ये अभी 18 प्लस के ही हुए हैं, तो कितना दहशत का माहौल जो है, क्योंकि सोसाइटी में तो काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल जो है वो फैल चुका है। देखिए, मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया और ये लव इंटरेस्ट जो आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी आ रहे हैं और उस चीज़ को लेके दिस क्राइम ऑफ पैशन दैट हैज हैपेंड, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम पुलिस ने इस केस को विद इन अप्रॉक्सीमेटली 24-25 आवर्स इसको क्रैक कर लिया है। तो बिल्कुल दहशत का माहौल जो इनिशियली इसमें बना था, उसमें पुलिस ने जिस तरीके से अपना काम किया है, जो अपना रोल निभाया है, उससे लोगों के बीच में एक ये मैसेज भी गया है कि अगर कोई इस तरीके की वारदात करेगा तो वो ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएगा, उसको जहाँ से भी पकड़ के लाना होगा हम लाएंगे और केस जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं जिस तरह से कठुआ पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि बड़ी जल्दी इस मामले को सुलझा दिया जाएगा, मैडम क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर जो क्राइम वर्ल्ड बनाया जा रहा है, जो बच्चे एक दूसरे की देखा देखी में गैंगस्टर, गुंडे, वेपन या बड़े बड़ी ऐसी चीज़ों में संलिप्त हो रहे हैं, उस तरफ किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है मैडम? जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से नशा मुक्त अभियान एक चला है पूरे जम्मू कश्मीर में, और हम अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं, पद यात्राएं हो रही हैं। बच्चों की ये जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम उनको भागीदार बना रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस में सभी टीचर्स को, पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में रोक इन करके उनको समझा रहे हैं ताकि जितना हो सके नशे के बारे में अवेयरनेस भी फैलाई जा सके और लोग बढ़ चढ़ के सामने आए, इंफॉर्मेशन दें, और ये वाली चीज़ को हम जितना जल्दी हो सके अपनी सोसाइटी में ख़त्म कर सके। इसी तरीके की जो मुहिम है, जब सारी सोसाइटी एक जन भागीदारी होकर एक सब साथ में आएंगे तो ये क्राइम जो है उसी तरीके से रोके जा सकते हैं, जिसमें नशा, चोरी, ये सारा कुछ एक साथ ही है। दूसरा जो है मैं ये कहूँगी कि पुलिस जो है अगर अपना रोल अच्छे से प्ले करती है और इस तरह की वारदातों को सॉल्व करके जल्द से जल्द जो भी अक्यूज्ड है उसको इफ वी पुट देम बिहाइंड बार्स, तो ये भी एक मैसेज आता है सोसाइटी को कि इस तरीके की वारदात के लिए जीरो टॉलरेंस है। मैम, जो इंजर्ड है, दोनों जो लड़के थे वो एक ही लड़की को, मतलब उनके साथ फ्रेंडशिप थी, क्या लड़की तो ने तो नहीं कहीं उसको उकसाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और लड़की का इसलिए हमने नाम भी रिडैक्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि आपने देखा, बिकॉज द गर्ल हैड नो रोल टू प्ले। मैम, जो इसका ब्रदर, जो डिकीस्ट का ब्रदर जो इंजर्ड है, उसका फिजिकल स्टेटस अभी क्या है, क्या कंडीशन है उसकी, क्योंकि ही इज द प्राइम विटनेस है वहाँ पर आपके केस के लिए। ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक या कोई भी डिटेल दे पाए। अभी भी वो क्रिटिकल ही आईसीयू में है। वी आर होपिंग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो इसमें जो आई विटनेस कौन बने, किस प्रकार इसको एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, क्योंकि